Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Virgo Ascendant and the predictions for the month of July 2023. So we will first start with the Ascendant Lord. The Ascendant Lord Mercury is passing through the 11th house of gains and it is going to stay here till 24th of July. So this is the best position for any Ascendant Lord to be in because 11th house represents gains, benefits from friends, social network and elders, and as a result this is going to be a very good month for you as far as gains are concerned because the sun is also shining in your 10th house or work sphere, which means that you are going to have a fantastic time at the workplace for the first 3 weeks. So you should try your level best till 24th of July to rise on your professional front. After 24th of July, the scenario will start to change as Ascendant Lord will move to the 12th house and you will start to feel lonely and isolated in August and September. But we will keep that discussion for the next month. This month is all about your gains at your workplace, whether it is in the business or job. You can also aim for investing in new ventures since 11th house is also associated with gains that you make from the investments. Investments are seen from the 12th house and the 12th from 12th, which results in a gain is seen from the 11th house. Now also let us look at other planets one by one. Venus is the lord of your second house and it is going to combine with Mars in the 12th house from 7th of July to 6th of August. It will give you results after it enters here immediately. So the best time finance wise is from 8th to 10th of July. You should try to spend your money through donating in charity, or you may see your money getting invested in foreign countries in this month. If not, the time frame from 25th of July to 6th of August may see you making a visit to a hospital because the ascendant lord will also go in the 12th and Venus, the lord of self and wealth, will also remain in the 12th house. So your money will get spent on improving your health, which means that money will be spent on health recovery in the hospital. So try to utilize this negative energy by donating money to the charity. For you, Saturn is the lord of speculation. Saturn never gives anything easily in life. So all those people who have worked hard to master the art of speculation will see a very good month as far as the gains from the stock markets are concerned. Time frame from 8th to 14th of July is the best time to make money in the stock market. Apart from this, time from 27th to 29th of July is also very conducive time frame for making money through speculations. For the students, the best time frame to succeed in competitive exams is from 5th to 9th of July and then again from 19th to 24th of July. Now, there are also certain dates where you need to remain careful, and these are the dates where you should avoid arguments with people and you should also postpone taking any key decisions. So, these dates for your ascendant in the month of July are 10th and 11th of July, 21st and 22nd of July, and 25th and 26th of July. Avoid these 6 days in the month of July when you are dealing with people. But if you look overall, the first 3 weeks till 24th of July, this time frame is very promising for you as far as rising and shining in the workspace is concerned. So that's the summary for you for this month. I would request you to subscribe to my channel and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कन्या लग्न के लिए जुलाई 2023 का महीना कैसे निकलेगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग लग्नेश पे नज़र डालते हैं। लग्नेश बुध 11वें भाव से भ्रमण कर रहे हैं जो कि एक लाभ स्थान है। यहाँ पर बुध 24 जुलाई तक बैठे रहेंगे और ये सबसे अच्छा पोजीशन कहलाता है लग्नेश का 11वें भाव में होना, क्योंकि इसके व्यक्ति को हर तरह से लाभ होते हुए दिखते हैं। कई बार स्वयं के कामों से ही उसको लाभ होते हुए दिखता है। इसके अलावा जो अच्छी चीज बन रही है कि सूर्य भी आपके दशम भाव में बैठ के इस भाव को उजाला देते रहेंगे। दशम भाव से आप अपने कर्म को देखते हैं, तो जितने भी लोग नौकरी या बिजनेस में हैं उनके लिए पहले 3 हफ्ते जुलाई के बहुत अच्छे हैं अपने कार्यस्थल पर चमकने के लिए, और नई मौके मिलने के लिहाज से भी ये समय अति उत्तम कहला सकता है। 24 जुलाई के बाद आपका सीन चेंज होने लगेगा क्योंकि लग्नेश आपके 12वें भाव में चले जाएंगे, और जैसे ही लग्नेश 25 जुलाई से आपके 12वें भाव में जाएंगे तो आपको अकेलापन महसूस होने लग जाएगा। इस समय में अपने खर्चों पर भी कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल आएगी
और यहाँ पर बुध अगस्त और सितंबर में विराजमान रहेंगे, लेकिन हम उसकी बात अगले महीनों के प्रिडिक्शंस के समय करेंगे। अभी अगर हम इस महीने देखें तो 3 हफ्तों तक बुध 11वें भाव में ही बैठा रहेगा और आपके लिए कार्यस्थल पे कई तरह के लाभान्वित होने के मौके बनाता रहेगा। इसके अलावा अगर आप कहीं नई जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये भी 24 जुलाई तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप 12वें भाव से कोई भी इन्वेस्टमेंट देखते हैं और 12वें का 12वां यानी उससे होने वाला लाभ आप 11वें से देखेंगे, तो इस समय में किए हुए इन्वेस्टमेंट भी आपके काफी काम आ सकते हैं। एक नज़र बाकी ग्रहों पर भी डालते हैं। शुक्र आपके द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं और ये 12वें भाव में मंगल के साथ युति करेंगे 7 जुलाई से 6 अगस्त तक। जैसे ही शुक्र यहाँ पर 12वें भाव में पदार्पण करेंगे तो वो तुरंत अपना नतीजा देंगे और आपको अगर फाइनेंस की दृष्टि से देखेंगे तो 8 से 10 जुलाई का समय आपके लिए सबसे बेहतरीन रहेगा। इसके अलावा आपको अगर मैं एक सजेशन दूं कि आप इस महीने में चैरिटी में आप पैसा दीजिए, डोनेट कीजिए अपना पैसा, क्योंकि वित्तीयेश 12वें स्थान में है। या फिर आप कहीं फॉरेन में इन्वेस्ट करते हैं तो भी इस महीने में अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप शॉपिंग मॉल में भी पैसे खर्च कर सकते हैं। अगर आप इस 12वें भाव की नेगेटिव ऊर्जा का यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो फिर 25 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक का समय ऐसा होगा, तब आपको हेल्थ रिलेटेड चीज़ों की वजह से अस्पताल के दर्शन करने पड़ जाएंगे, क्योंकि द्वितीयेश के 12वें में होने के अलावा लग्नेश भी 12वें में चले जाएंगे, तो ये दोनों यहाँ पर कंबाइन होकर आपको अस्पताल में चूना लगाने का काम करेंगे। और बजाय वहाँ पर हेल्थ रिकवरी करने से अच्छा है कि आप चैरिटी में पैसे दे दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है इस भाव की नेगेटिव ऊर्जा को इस्तेमाल करने का। आपके लगने के लिए शनि पंचम भाव के स्वामी हैं और 6वें भाव के भी स्वामी हैं। पंचम भाव से आप सट्टा बाजार को देखते हैं, क्रिएटिव चीज़ों को देखते हैं और विद्या को देखते हैं। तो जितने भी लोग शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं, देखिए शनि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं देता और इसके फल जहाँ पर भी इसकी राशियाँ पड़ती हैं वहाँ से जुड़ी हुई चीज़ों का फल मिलने में व्यक्ति को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो जितने भी लोगों ने मेहनत करके शेयर बाजार को समझा है और वो इसमें खेलना जानते हैं, उनके लिए जुलाई में बहुत सारे दिन हैं जब आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं। सबसे पहले 8 से 14 जुलाई तक का समय बहुत अच्छा है शेयर बाजार से लाभ कमाने की दृष्टि से, और उसके बाद 27 से 29 जुलाई तक का भी समय ऐसा रहेगा जब ये आप शेयर बाजार से पैसा कमा सकेंगे। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हैं, उनमें सफल होना चाहते हैं, तो 5 से 9 जुलाई तक का समय और उसके बाद 19 से 24 जुलाई तक का समय सबसे अच्छा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पास होने की दृष्टि से। अभी हर महीने में कुछ ऐसे दिन भी होते हैं जब आपको सावधान रहना पड़ता है। इन दिनों में आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना टालना चाहिए और लोगों के साथ वाद विवाद करने से बचना चाहिए। तो ये दिन जुलाई के महीने में आपके लगने के लिए हैं 10 और 11 जुलाई, 21 और 22 जुलाई और 25 और 26 जुलाई। इन 6 दिनों में सावधान रहिए। अगर आप कुल मिला के देखें तो जुलाई के महीने में जब तक लग्नेश 11वें भाव में बैठे हुए हैं यानी 24 जुलाई तक का समय, ये बहुत ही शानदार समय है अपने कार्यस्थल पर चमकने का। अगर आपको नौकरी पेशा इसमें आप हैं तो आपको कार्यस्थल पे ऊपर प्रमोशन के मौके मिलेंगे, और अगर आप बिजनेस में हैं तो हो सकता है आपको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए नए पार्टनर्स मिल जाएं या कोई ऐसे लोग मिल जाएं जो आपके बिजनेस में पैसा लगा सकें। तो पहले 3 हफ्ते 24 जुलाई तक का समय एकदम शानदार है, लेकिन उसके बाद जैसा मैंने बताया अगले 2 महीने अगस्त सितंबर में आपके लिए खर्चीले साबित होंगे और आपको अपने पैसे को रोकने में बहुत मुश्किल आएगी। तो ये आपकी समरी है इस महीने की। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।